بہرحال ان کا دوسرا علاج وہ بچی ہے جس نے اسی جادو کے زیر اثر زندگی پائی اور پھر نہ جانے کس کے پروں میں چھپ کر زندگی گزار رہی ہے۔ اس کا بھی کہیں نام و نشان نہیں ملتا اور یوں لگتا ہے جیسے اسے کسی پردے میں لپیٹ دیا گیا ہو۔ جس وقت حکم الہی ہوگا اور وہ بچی اپنی ماں کے پاس آ جائے گی تو عزیزہ عرشیہ سے ہر طرح کا سحر ختم ہو جائے گا۔ عزیز محترم چودھری شاہ نواز، آپ صبر سے کام لیں۔ بہرحال عرشیہ بیگم انسان ہے اور انسانیت سے انسان ہمیشہ متاثر ہوتا ہے۔ آپ اپنی محبت کا عمل جاری رکھیں، وقت عرشیہ بیگم سے آپ کی بیگانی کا سحر ختم کر دے گا۔ آپ اسے اپنی جانب راغب کریں۔ یہ دعویٰ میں کرتا ہوں کہ بہت جلد یہ آپ کو اپنا شوہر تسلیم کر لیں گی۔ معافی چاہتا ہوں، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا، اور آپ بے فکر رہیں کہ ان واقعات کو میں ذہن سے نکالوں گا نہیں، اور اگر کوئی اور درمیانی راستہ میرے علم میں آیا تو میں آپ کو اس سے ضرور آگاہ کروں گا۔ چودھری شاہ نواز نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا، بابا سلامت، بے شک میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن مزید بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ایک سادہ زندگی گزاریں اور کوشش کریں کہ پریشان حال لوگوں کے کام آئیں۔ آپ نے اپنی پہلی اہلیہ کو معافی دے کر ایک ثواب تو کما لیا ہے، میرے لیے اور کوئی حکم ہو تو بتائیے۔ نہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا، اور مجھے اجازت دیجیے کہ کبھی کبھی آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہو جایا کروں۔ گناہ گار نہ کرو، انسان کا انسان پر بہت قرض ہوتا ہے۔ میرے لائق جب بھی کوئی خدمت ہو اس سے گریز نہ کرنا، یہ میرے لیے بھی بہتر ہے۔ بابا صاحب، میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں بیٹے، وہ بات نہ کرو، سارا کیا دھڑا مٹی میں مل جاتا ہے۔ مجھے کچھ دینے کی پیشکش نہ کرنا، ورنہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی مجھ سے چھن جائے گا۔ چودھری شاہ نواز نے مغموم انداز میں گردن جھکا لی تھی۔ چنگیزو بستی کا سب سے خوبصورت جوان تھا۔ اپنے 6 فٹ قد اور چوڑی چھاتی کی وجہ سے سبھی کا منظور نظر تھا۔ قبیلے کے لوگ اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن چنگیزو انتہائی سنجیدہ رہتا تھا۔ بستی کے جوان آپس میں بہت سی کہانیوں کے امین تھے۔ حسن و عشق کی لاتعداد داستانیں تھیں۔ جنگ و جدل اور جسمانی قوتوں کے اظہار کے لیے سردار گنگا کی طرف سے ہر تہوار کے موقع پر کھیل کود ہوا کرتے تھے، لیکن چنگیزو نے کبھی ایسے کاموں میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ سنجیدگی سے ہر چیز کو دیکھتا تھا، جبکہ سردار گنگا نے کتنی ہی بار اس سے کہا تھا کہ چنگیزو، تم بستی اور قبیلے کے نام پر بٹا کیوں لگا رہے ہو؟ صحت میں تم قبیلے کے ہر جوان سے زیادہ طاقتور ہو، پھر تم جسمانی کھیلوں میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟ چنگیزو اس موقع پر سر جھکا کر رہ جاتا تھا۔ جو کہانی اس کے سینے میں پروان چڑھ رہی تھی اس کا اظہار اس نے کسی پر نہیں کیا تھا، اور کہانی یہ تھی کہ چنگیزو کا دادا اس قبیلے کا سردار تھا۔ سپیروں کی یہ بستی کوئی 400-500 افراد پر مشتمل تھی۔ سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان ایک گلستان جیسی جگہ کو انہوں نے اپنے لیے جنت بنا رکھا تھا۔ سردار گنگا بھی ایک ذہین اور اعلیٰ کارکردگی کا مالک سردار تھا۔ اس نے جوانوں کو سانپ پکڑنے اور ان کا زہر نکال کر بیچنے سے کبھی منع نہیں کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس نے ان سے یہ بھی کہا تھا، سپیرے عام طور سے خانہ بدوش کہلاتے ہیں اور جگہ جگہ خیمہ زن ہو کر اپنا کام کیا کرتے ہیں، لیکن تم لوگوں کو ایک بات جان لینی چاہیے کہ خانہ بدوشی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس جگہ اس وقت ہم آباد ہیں یہ جگہ بہت اچھی ہے۔ تم لوگ یہاں مستقل اپنی بود و باش اختیار کر لو اور جہاں چاہو اپنی ضرورتوں کے تحت نکل جاؤ، لیکن پھر واپس یہیں آ جاؤ۔ اس طرح تمہارا اپنا ایک مقام ہوگا۔ ان پہاڑوں اور جنگل بیابانوں میں کسی کی اجارہ داری بھی نہیں ہوگی۔ تم اپنے لیے ایک بہتر دنیا آباد کر لو۔ سبھی کو یہ بات پسند آئی تھی اور نتیجتاً یہاں کچے پکی جھونپڑیاں اور مکانات تعمیر ہونے لگے۔ سپیروں نے آس پاس کے وسائل، درختوں اور زمین کی مٹی سے مدد لے کر یہاں اپنی دنیا آباد کر لی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سردار گنگا نے جوانوں کو ہدایت کی تھی کہ صرف سانپوں سے ہونے والی آمدنی سے گزارا نہ کریں، اپنے لیے کھیت لگائیں اور ان قدرتی وسائل سے استفادہ حاصل کریں جو قدرت نے انہیں یہاں مہیا کر دیے ہیں۔ نتیجے میں پہاڑوں کی یہ بستی ایک حسین و جمیل آبادی قرار دی جا سکتی تھی۔
गूंगा एक अच्छा सरदार था और 22-23 सालों से बराबर सरदार चला आ रहा था, लेकिन असलियत यह थी कि चंगेज़ू का परदादा किसी ज़माने में इस कबीले का सरदार था। फिर उसका इंतकाल हो गया और चंगेज़ू का दादा अपने आप को सरदारी का अहल ना साबित कर सका। बाप उससे कहीं ज़्यादा निकम्मा और नकारा निकला, जिस पर चंगेज़ू की माँ सीरा को बहुत दुख था। वो चाहती थी कि परदादा के नक्शे कदम पर कम अज कम और कोई नहीं तो चंगेज़ू जरूर चले, और उसने इब्तदा ही से चंगेज़ू के ज़हन में ये बात डाल दी थी कि उसे अपने परदादा की सरदारी वापस लेनी चाहिए। उसके दो ही तरीके हुआ करते थे। पहला ये कि जिस्मानी तौर पर मौजूद सरदार को शिकस्त दी जाए और इस तरह सरदारी हासिल की जाए। दूसरा तरीका यह था कि शीशनाग का जोड़ा पकड़ा जाए और उसे लाकर बस्ती के सामने पेश किया जाए। शीशनाग का जोड़ा पकड़ने वाले को बिला शक व शुबा बस्ती का सरदार चुन लिया जाता था, लेकिन बरसों बीत चुके थे, कबीले का कोई भी शख्स शीशनाग नहीं पकड़ पाया था। सरदार गूंगा भी इससे पहले वाले सरदार से जिस्मानी तौर पर मुकाबला करके सरदारी के लिए मुंतखब हुआ था, लेकिन ऐसे सरदार को वो मकाम नहीं मिलता था जो शीशनाग पकड़ने वाले सरदार को मिल जाता था। बस्ती में कई ऐसे बुजुर्ग थे जो जादू टोनों और पुरस्कार कुव्वतों के मालिक थे, लेकिन उन्हें सरदारी वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अलबत्ता उनका शुमार बस्ती के मुअज़्ज़िज़ीन में होता था। जब भी बस्ती में कोई उलझन पेश आती तो मुअज़्ज़िज़ीन उसका हल पेश करते थे और उनकी बात हर तरह से तस्लीम की जाती थी। चुनांचे सरदार गूंगा, जो असल में गूंगा नहीं था बल्कि उसका नाम गूंगा था, खास तौर से चंगेज़ू से कहता था कि चंगेज़ू, तुझे बस्ती का सरदार होना चाहिए। मैं तुझसे जिस्मानी मुकाबला करने के काबिल नहीं हूँ, तू बआसानी मुझे शिकस्त दे सकता है। मुझे ललकार और पहली पूरनमाशी को मुझसे मुबाज़रत तलब कर। मुझे हराना तेरे लिए इंतहाई आसान होगा, क्योंकि मैं तुझसे ये तो नहीं कह सकता कि तू शीशनाग लेकर आ, ये तो बहुत मुश्किल काम है। तब उस वक़्त चंगेज़ू ने कहा था, मैं तुझसे कोई मुकाबला नहीं करूंगा सरदार गूंगा, लेकिन अगर तेरी ख्वाहिश है कि मैं तेरे बाद इस बस्ती का सरदार बनूं, और मेरी माँ की भी यही आरजू है, तो मैं शीशनाग की तलाश में निकलता हूँ। पागल, शीशनाग का कोई ठिकाना नहीं होता। हमारे कबीले में सदियों से कोई सपेरा शीशनाग नहीं पकड़ सका। तू इस उलझन में ना पड़। लेकिन चंगेज़ू ने यह चैलेंज कबूल किया और अपनी माँ और सरदार से इजाज़त लेकर शीशनाग की तलाश में चल पड़ा। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त उसके साथ था और वो लोग जंगलों और बस्तियों में शीशनाग की तलाश में सरगर्दा थे। कुछ ऐसे जादू मंत्र भी चंगेज़ू को आते थे जो शीशनाग की तलाश में उसके मावन हो सकते थे। बहरहाल चंगेज़ू ने कई साल शीशनाग की तलाश में गुजार दिए थे। उसका दोस्त हारून उससे कहता था कि वो दोस्ती निभाने के लिए तैयार है, लेकिन जान ले कि शीशनाग होता जरूर है लेकिन मिलता नहीं है। मेरी बात का बुरा मत मानना हारून, मैं जानता हूँ कि जरूरत पड़ने पर तू मेरे लिए जान भी दे सकता है, लेकिन ये भी जानता हूँ कि तेरी 2 छोटी बेटियां और बीवी है, उन्हें तेरी जरूरत है। अगर ये काम आसान होता और इस बात के इम्कानात होते कि शीशनाग मुझे मिल जाएगा, तो मैं तुझसे विनती करता कि कुछ वक्त और मेरा साथ दे, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि तुझे चले जाना चाहिए। हारून ने गर्दन झुकाई, फिर अफसुर्दगी से बोला, मैं सपनों में अपनी बच्चियों को देखता हूँ, वो मुझे बुलाती हैं। तुझे जाना चाहिए मेरे दोस्त। चंगेज़ू ने हारून को वापस भेज दिया और तन्हा जंगल गर्दी करने लगा। खानदानी सपेरा था, सांपों और उनके बारे में काफी मालूमात रखता था। बेशक शीशनाग उसने कभी नहीं देखा था, लेकिन कबीले के बूढ़े सपेरे उसे बताते थे कि शीशनाग या नागिन क्या होती है। वो इन्हीं निशानियों को ज़हन में रखकर जंगलों और बड़े बड़े मैदानों में जहाँ घास की चादर बिछी होती थी, शीशनाग को तलाश करता था। हारून को उसके पास से गए हुए अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि एक दोपहर वो एक ऐसे मैदान में जा निकला जहाँ थोर की बड़ी बड़ी झाड़ियां बिखरी हुई थीं। उन झाड़ियों में भी अक्सर सांप पाए जाते थे, लेकिन चंगेज़ू को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी जगह शीशनाग मिल सकता है। अलबत्ता उसकी तजुर्बेकार आंखों ने वो 2 लकीरें देख ली जो दूर तक चली गई थीं। ये लकीरें बहुत चौड़ी थीं और उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो सांप की लकीरें हों। इतने चौड़े चपके सांप का तस्वर जरा मुश्किल ही था। अजदहों की चाल दूसरी होती है, वो आमतौर से सीधे जाते हैं और रुक रुक कर जाते हैं। उनके रुकने से थोड़ी सी मट्टी सिमट जाती है, लेकिन ये लकीरें लहरदार थीं और लहरदार लकीरें सिर्फ सांप की चाल से बन सकती हैं।
वो अचंभे में पड़ गया और फिर काफी दूर तक उसने लकीरों का ताक़ुब किया। चट्टानी इलाके में बहुत ज्यादा मिट्टी नहीं थी, बस हल्की हल्की उड़ने वाली गर्द वहां निशानात बना देती थी। जितनी गहरी ये लकीरें थीं, इससे ये अंदाजा होता था कि कोई वजनी सांप इधर से गुजरा है। और फिर उन लकीरों का इख्तिताम एक बड़ी झाड़ी पर हुआ था, और मजे की बात यह थी कि एक झाड़ी से बाहर एक काली दुम निकली हुई थी। न जाने क्यों चंगेज़ू का दिल जोर से धड़का और उसने बीन निकालकर फौरन ही बजाना शुरू कर दी। इतनी खूबसूरत बीन बजाता था वो कि सांप तो सांप, पूरा कबीला ही मस्त हो जाता था। भला क्या मजाल कि जब वो बीन का आगाज करे तो कोई सांप बेखुद ना हो जाए। वो बीन बजाता रहा और न जाने कहां से परिंदे उड़ उड़कर उसके पास जमा होने लगे। वो खुद भी बेखुद होता जा रहा था। फिर जब वो बीन बजाते बजाते थक गया तो उसे होश आया और उसने उस छोटे फन को देखा जो चक्की के पार्ट जैसा था और झूम रहा था। उसे देखकर चंगेज़ू को थोड़ी सी मायूसी हुई, क्योंकि वो फन शीशनाग नहीं था, वो नागन थी, लेकिन एक ऐसी नागन जो आम तौर से नागरानी हुआ करती है। शीशनाग उसे नजर नहीं आया था। अगर शीशनाग होता तो वो भी झूम रहा होता। लेकिन उन्हीं झाड़ियों में उसे कुछ और भी नजर आया। ये एक सोता हुआ सांप था और इस मर्तबा चंगेज़ू एक बार फिर दहशत ज़दा हो गया। ये शीशनाग था, लेकिन वो जिस तरह पड़ा हुआ था उसे देखकर ये एहसास होता था कि शीशनाग मुर्दा है। चंगेज़ू खुशी और जज्बात में नागन को भूल गया और उसने झाड़ियों में हाथ डालकर शीशनाग का फन पकड़ लिया। शीशनाग खुसमुसाया मगर होश में नहीं आया। तब चंगेज़ू ने वो बड़ी टोकरी निकाली और नाग को खींचकर टोकरी में डाल दिया। जैसे ही नाग टोकरी में पहुंचा, नागन ने अपना फन सकोड़ा और खुद भी टोकरी में दाखिल हो गई। चंगेज़ू फटी फटी निगाहों से शीशनाग को देख रहा था। ये अंदाजा उसे थोड़ी ही देर में हो गया कि शीशनाग जिंदा है और सिर्फ बीन के ज़ेरे असर बेखुद है। फिर जब नाग के बदन में खुशमुसाहट हुई तो चंगेज़ू ने जल्दी से टोकरी बंद कर दी और खुशी से दीवाना हो गया। वो चीख चीख कर कह रहा था कि सपेरो, मैं तुम्हारा सरदार हूँ। मेरे परदादा, मैंने तेरा खोया हुआ मनसब हासिल कर लिया है। मेरे दादा और मेरे बाप अब तुम्हारी नस्ल का एक फर्द सपेरों का सरदार है। और फिर उसने वजनी टोकरी भीगी में रखी और फिर अपने कबीले की जानिब सफर करने लगा। जब वो कबीले में पहुंचा तो उसका दोस्त हारून उससे 2 दिन पहले ही पहुंचा था। चंगेज़ सीधा हारून के पास गया और उसने खुशी से कपकपाते लहजे में बताया कि वो शीशनाग हासिल करने में कामयाब हो गया है। हारून ने पूरे कबीले में ये खबर फैला दी और चंगेज़ू के घर के सामने सपेरों का मजमा लग गया। यहाँ तक कि सरदार को भी पता चला और सरदार गुंगा अपने तमाम जादे मंत्र लेकर चंगेज़ू के पास पहुंच गया और उसने शीशनाग को देखकर तस्दीक कर दी कि आखिरकार चंगेज़ू ने वो कर दिखाया जो सदियों से कोई सपेरा नहीं कर सका था। इस तरह अब बस्ती की तकदीर खुलेगी। हर शख्स को इतना रिज़्क मिलेगा कि उसके पास खर्च करने की गुंजाइश नहीं होगी। सारी बस्ती में चिराग रोशन कर दिए गए और जश्न मनाया जाने लगा। 16 दिन तक ये जश्न मनाया गया और वो तमाम रस्में दोहराई गई जो सपेरों की बस्ती में राइज थी। और फिर वो मंत्र पढ़े गए जिनकी रूह से नागों से मुआहिदा किया जाता था कि इतने साल उन्हें उनके साथ रहना होगा और उसके बाद उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। शीशनाग की रिहाइश के लिए एक पहाड़ी गुफा में तैयारियां होने लगी और तमाम तैयारियों के बाद जादू टोनों की आखिरी रस्म अदा की गई। नाग और नागन को 13 साल की कैद दे दी गई। अब उन्हें 13 साल से रिहाई मिलने का कोई इम्कान नहीं था। चंगेज़ू कबीले का सरदार बना दिया गया। अब सूरत हाल ये थी कि चंगेज़ू कुदरती मौत मर जाए या फिर कोई इतना जहरीला सांप हो जो उसे हलाक कर दे, तभी चंगेज़ू की सरदारी खत्म हो सकती थी। ड्राइंग रूम में एक इंतहाई हसीन कदे आदम फ्रेम लगा हुआ था और उस फ्रेम में बशीर बेग की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर नजर आ रही थी। बशीर बेग को जिस बात में हैरत हुई थी वो इस तस्वीर के नकूश थे। कोई शको शुबा नहीं था, तस्वीर 100% उसी की थी। लेकिन उस तस्वीर में जो लिबास बशीर बेग ने पहना हुआ था, ऐसा लिबास उसने ख्वाब में भी नहीं देखा था। बूढ़े शख्स के होंठों पर एक पुरस्कार से मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसने कहा, क्या सोच रहे हो हातिम? देखो बुजुर्गो, बहुत सी बुराइयां की हैं जिंदगी में,
लेकिन जब से नैना मेरे पास आई है, न जाने क्यों मेरा दिल चाहता है कि बुराइयों से बचूं। मैं नहीं जानता बीवी कैसी होती है, औलाद क्या चीज होती है, लेकिन नैना को देखकर मेरे दिल में ख्याल उभरता है जैसे मैं उसका बाप हूँ, और बापों का अपनी बेटी की मौजूदगी में एक फर्ज बन जाता है कि वो बेटी के सामने शर्मिंदा ना हो। देखो बुजुर्गों, मैं तुमसे सच बोलना चाहता हूँ कि मैं हातिम नहीं हूँ, मैं एक मामूली सा अचका हूँ। पर थोड़े दिन पहले कुदरत ने मेरा हाथ थाम लिया है, और वो भी मैं समझता हूँ कि ये नैना की बरकत है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, अगर तुम समझते हो तो फिर जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ उसे भी अपनी बेटी की बरकत समझो। देखो हातिम, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरा कोई ठिकाना नहीं है। सब कुछ मैं तुम्हें सौंप कर यहाँ से चला जाऊंगा। नौकर चाकर, माल दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगा। करोड़ों रुपया बैंक में पड़ा हुआ है। जब तक बच्ची जवान ना हो जाए और तुम उसकी शादी किसी बहुत अच्छी जगह ना कर दो, तुम पर यह जिम्मेदारी है कि तुम बच्ची की पूरी निगहदाश्त करोगे, उसे वो सब कुछ दोगे जो उसकी तलब और उसकी ज़रूरत है। मैं तुम्हारे सारे कानूनी मामलात पूरे करके यहाँ से जाऊंगा ताकि तुम्हें बाद में कोई तकलीफ ना हो। ये कोठी और ये तुम्हारा सारा साजो सामान, हाँ, अब तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जरूरी काम करके तुम्हारे पास वापस आऊंगा, क्या समझे? जैसा आप पसंद करो, बशीर बेग ने निढाल लहजे में कहा, इस तस्वर के साथ कि अब वो इस शानदार कोठी में मालिक की हैसियत से रहेगा। उसके हाथ पांव फूल गए थे। बुजुर्ग ने तमाम मुलाजमों को बुलाया और उन्हें हदायत की कि हातिम उनका बेटा है और वो अपना सब कुछ उसे सौंप कर यहाँ से जा रहे हैं। सारे मुलाजमीन पूरी नीयत के साथ हातिम के अहकामात की पाबंदी करें। बहरहाल हातिम को एक कमरे में मुंतकिल कर दिया गया और वो अपने दिलो दिमाग को ये तसल्ली देने लगा कि जो कुछ हुआ है वो कोई ख्वाब नहीं है, बल्कि ख्वाब हकीकत बन गए हैं। फिर उसे ताजी और नैना का ख्याल आया और उसका दिल फड़फड़ाने लगा कि उनके पास पहुंचा जाए और उन्हें यहाँ ले आए, जबकि बुजुर्ग ने पहले ही इजाजत दे दी थी। लेकिन वो फौरन ही इन दोनों को यहाँ नहीं लाना चाहता था। पहले वो इस बात की तस्दीक कर लेना चाहता था कि जो कुछ हुआ है इसमें कोई उलट फेर तो नहीं है। हालांकि वो बुजुर्ग जिस तरह के थे उनकी किसी बात पर शुबा नहीं किया जा सकता था, लेकिन बशीर बेग चूंकि दूसरी तरह की जिंदगी गुजार चुका था, इसलिए उसे ये सब कुछ ख्वाब लग रहा था।